So today we are going to continue with our Python content, and today we are going to start the next topic, that is your loop, or you can say that looping. In fact, as we discussed that previously, any programming languages uses three types of a statement. One is called sequential, second is called conditional, and third is called iteration. So iteration refers to the looping. Looping refers to it will execute the statement till the condition is not going to be falsy. But in other languages, they uses two types of loop, like entry control and exit control. But Python uses two types of loop. One is called counting loop and another is called conditional loop. So in counting, we are having the for loop, and in conditional, we are having the while loop. So you know very well that every loop having four parts. First is the start value. Second is the condition or a stop value, and third is increment, that is also called a step value, and fourth is the statement, what we want to execute. So unlike every loop or every programming language, Python's for loop works with two parts. One is for the numeric, in which we uses range function, and another for loop is a string that uses in. Now this all was the part of your explanation for the for loop. So we are going to look the for loop first. As we can say, suppose we want to print the number from 1 to 10, then how the for loop is going to be start? We will have to write for I in range 1, 11, and no need to give the stop or step value. Before describing this all, I just want to tell you about the range function. What is the scenario of the range? You can see here, range works with three. First is the start value, second is the stop value, and third is the step value. Now, if we are giving the start value as 1, a stop value as 10, and a stop value is 1, that means what? It will begins from 1 and it will reach to 9. याद रखिएगा, पाइथन में रेंज फंक्शन के साथ स्टॉप वैल्यू जब आप देंगे तो ये दिए हुए इस वैल्यू को एक्सक्लूड करता है. एक्सक्लूड का मतलब कभी भी इसको कैरी नहीं करेगा. लाइक अगर आपको अगर 10 तक का वैल्यू प्रिंट करना है, देन यू विल हैव टू पुट हियर 11. आपको यहां पे 11 पुट करना होगा. और स्टेप अगर 1 का है तो स्टेप आप नहीं भी देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा.
ये बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। अभी हम लोग इसको हटाएं, हटा सकते हैं? अच्छा, तो आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने लिखा कि फॉर आई इन रेंज i, 11, सो इफ, अच्छा एक और चीज आप देख सकते हो कि दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। इन पाइथन वी आर हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट टू। वन इज कॉल्ड सिंपल और सिंगल, सेकेंड इज कॉल्ड एम्प्टी, एंड थर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट रेफर्स टू व्हाट? A statement which keeps the lots of statements inside। तो हर कंपाउंड स्टेटमेंट का ये सिग्निफिकेंस होता है कि एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी विल हैव टू यूज द कोलोन। ये कोलोन ही बताता है कि द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। वो कंपाउंड स्टेटमेंट का पार्ट है। तो आप जैसे ही कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ आगे इंटर करेंगे तो यू विल सी this will reach to the 4 space forward। ये 4 स्पेस फॉरवर्ड चला जाएगा। that is called indent, that is called indent। पाइथन में इंडेंट का बहुत बड़ा रोल है। इंडेंटेशंस अगर आपने सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करा तो आपका पाइथन का पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं वो 4 अपने साथ 4 स्पेस के साथ ऑटोमेटिकली वो आगे चला जाएगा। अब आपका कर्सर यहां चला आएगा। नाउ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू सिंपली राइट प्रिंट आई, और आप देखेंगे कि द रिजल्ट विल प्रोड्यूस लाइक 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा टिल 10 तक ये काम करेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रिंट फंक्शन के साथ हम लोग 2 तरह का कंटेंट यूज कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सेव और एक को कहते हैं इंड। सेव का मतलब होता है टू सेपरेट और इंड का मतलब होता है आप किस लाइन से उसको इंड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे लिखते हैं प्रिंट पाइथन और यहां पे दूसरा वर्ड लिखते हैं वर्ल्ड, और देन आफ्टर हम लोग कॉमा दे के लिख देते हैं सेव इज इक्वल्स टू @। अब जब आप इसका आउटपुट प्रिजर्व करेंगे तो यू विल रिसीव लाइक पाइथन एंड दिस विल बी सेपरेटेड बाय @, एंड देन आफ्टर वर्ल्ड विल बी फॉलोड बाय दैट। वहां पे वर्ल्ड लिखा होगा। गॉट इट? इंड का मतलब है कि एट द एंड व्हाट डू यू वांट टू एक्सपेक्ट हियर। अभी दूसरा लाइन सपोज हम प्रिंट में जाके लिख दें प्रिंट पाइथन वर्ल्ड सेव इज इक्वल्स टू @ कॉमा इंड इज इक्वल्स टू एक साइन हैश का दे देते हैं। तो नाउ यू विल प्रिजर्व द रिजल्ट लाइक पाइथन @ वर्ल्ड at the end of this part you will preserve the hash also। तो प्रिंट के साथ 2 और हम लोग कंटेंट यूज करते हैं जिसमें एक का नाम है सेव और दूसरे का नाम है इंड। इसको याद रखिएगा। नाउ कैन आई वॉच दिस? क्लियर कर दें इसको। वेरी गुड। चलिए नाउ यू कैन सी द बेटर एग्जांपल फॉर द फॉर लूप how this is going to be work। अभी हम लोग लिखते हैं यहां पे फॉर i in range 2, 11, 2 and we are going to write print I। Now see, this time we have setted the step value as 2। This is the start value, this is your start value that we are going to recommend this program कि the loop should begins with 2 and what is the stop value? That is the stop value that is 11। that means कि ये कहां तक एग्जीक्यूट करेगा? 10 तक। मैंने क्या बताया?
कि वॉट एवर द वैल्यू वी आर गोइंग टू गिव हियर दैट विल बी एक्सक्लूडेड। अगर आपने 11 दिया है तो 10 तक ही आप कंसिडर करेंगे। पहला एग्जांपल में आपने देखा कि हमने वहां पे स्टेप वैल्यू नहीं दिया था, बिकॉज स्टेप वैल्यू 1 का था इसलिए 1 हमने वहां पे नहीं दिया। बट सपोज 1 से ज्यादा का स्टेप वैल्यू आप देना चाहते हैं तो आप मेंशन करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि द पर्टिकुलर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट लाइक द 2 विल प्रिंट फर्स्ट, देन दिस विल बी चेक कि 2 जो है वो 11 और 10 से छोटा है कि नहीं, और छोटा होने के बाद फिर से उसमें 2 ऐड कर देगा। तो सेकेंड टाइम I will produces 4, then 6, then 8, then 10, and as the value reach to the 10 plus 2, तो देखो ये कंडीशन नहीं है, इंडेक्स हमने सेट कर दिया कि 11 से बड़ा वो लेगा ही नहीं, तो 1 उससे कम, तो 10 तक पे ही जाके लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर स्टेप वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप वैल्यू। गॉट इट। और अगर दिस वाज द असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब ये घटने से बढ़ने की तरफ था, अगर इसी को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे तो लूप अब आपका चेंज हो जाएगा। कैसे लिखिएगा? सो फॉर I in range we will begin this with 10 now, and here we will have to set 0, और उसके बाद स्टेप वैल्यू विल 2 और प्रिंट करेंगे I। नाउ यू कैन सी, तो दिस इज फॉर असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड दिस इज फॉर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, बढ़ते से घटते क्रम में ही आएगा। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ योर फॉर लूप। आप इसमें बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखते हैं। यू नो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर दोज नंबर हु हैव ओनली द 2 फैक्टर्स। Yes, 1 and itself. So in Python, how we can solve a program for the prime number? Let it be checked. हटाएं इसको, लिख लो। ये पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर 8 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 2 करेगा, और 0 आने के बाद ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, हटा दें। नाउ सी व्हाट इज द प्राइम। क्वेश्चन है, इनपुट अ नंबर इन पाइथन एंड चेक whether it's prime number or not. So first of all, we should understand that what is the meaning of the prime number. Prime numbers are refers to those numbers who are only having the 2 factors, 1 and the number itself. That is called the prime number. So how we are going to solve this program in Python? Let it check. First of all, input a number. So like a is equals to int input, enter any number. After that ए में आपने एक नंबर की एंट्री कर दी, राइट। अब क्या करना है, एक यहां पे हम लोग ले लेते हैं सी, जिसका वैल्यू करते हैं 0, और लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। गॉट इट। कहां से लूप शुरू होना चाहिए? तो 1 से शुरू होना चाहिए, और जाना कहां तक चाहिए? a+1। a+1, जैसे सपोज करिए कि a+1 अगर आप नहीं लेंगे, a+1 अगर आप नहीं लेते तो वो लूप आपका चलेगा कहां तक? एक्सक्लूड कर देगा, तो रिजल्ट पूरा नहीं आएगा।
जिससे हम लोग करते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से शुरू करेंगे और चलेगा कहां तक, a+1 तक। चलिए एक एक का स्टेप लिए। अभी क्या होगा कि इफ a mod by I इक्वल्स टू 0, तो C का वैल्यू क्या होना चाहिए, C इज इक्वल्स टू C+1, C इज इक्वल्स टू C+1। और लूप के बाहर आके हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ C इक्वल्स टू 2, अगर C का वैल्यू 2 है तो प्रिंट क्या करेंगे, यस प्राइम, एल्स प्रिंट करेंगे नो प्राइम। मैं समझा भी रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउ यहां देखेंगे ए में हमने कोई नंबर इनपुट किया, आप कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर बोलो। 5। चलिए आपने कहा 5, हमने ए में एक नंबर इनपुट कर दिया है 5। अभी आपने कहा कि फॉर आई इन रेंज एंड 1 शुड बी बिगिंस विथ 1 एंड इट शुड बी रीच टू द 6, तो 6 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली ये 5 तक चलेगा। तो ए का वैल्यू अभी आपका कितना है, 5। तो अभी आप यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 5 mod by 1 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस है कि अगर 1 से 5 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जैसे ही इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा तो C का वैल्यू जो 0 है दैट विल बी इंक्रीज विथ 1, 1 से वो बढ़ जाएगा और C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 0 से बढ़ के कितना हो गया, 1। तो अभी C हमारा क्या हो गया, 1। फिर लूप ऊपर गया और इस बार I का वैल्यू कितना है, 2। तो दिस टाइम दिस इज गोइंग टू डिवाइड द 5 विथ 2, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। यानी कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये अब C में नहीं आएगा, C का इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर उसी तरह से I का वैल्यू कितना हुआ, 3, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया, 2। फिर से ही आप देखोगे C का इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि इसने कंडीशन को डिसक्वालीफाई किया। एक बार फिर I का वैल्यू कितना हो रहा है, 4, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। इस बार फिर से इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो C का इंक्रीमेंट फिर नहीं हुआ। अभी I का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 को ये 5 से डिवाइड कर रहा है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब ये नीचे आएगा और C का वैल्यू 1 से बढ़ के कितना हो गया, 2। अब जैसे ही ये 6 होगा तो लूप एक्सक्लूड कर जाए, एक्सक्लूड किया तो वैल्यू लूप टूट के बाहर चला आएगा। अब अल्टीमेटली व्हाइल वी विल कम आउट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, तो इसका मतलब है कि ये यहां इफ पे आएगा और चेक करेगा कि इफ में चेक करेगा कि C क्या लेके आया है। अल्टीमेटली अगर C 2 लेके आया है तो वो नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम नहीं है। आप देख सकते हो, तो C कितना लेके आया है, अगर 5 की बात करें तो C हमारा 2 लेके आया है, इसलिए नहीं होगा। देखिए कोई भी ऑड नंबर प्राइम नहीं है, ऑड नंबर इज नेवर ट्रीटेड एज द प्राइम। अगर आप 9 की बात करते हैं तो 9 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, इसका C को ये 3 टाइम्स बढ़ाएगा। कब कब, एक बार 9 1 से भी डिवाइड होगा, एक बार 9 3 से भी डिवाइड होगा और एक बार 9 9 से भी डिवाइड होगा। तो वैसे सिचुएशन में C का वैल्यू हो जाएगा 3। तो चेक करेगा कि क्या 3 2 के इक्वल्स है, अगर इक्वल्स है तो प्राइम है, लेकिन 2 के इक्वल तो C नहीं है 9 के केस में, तो बताएगा कि ये प्राइम नहीं है। तो बाय दिस वे यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द लूप इन पाइथन। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो